میں آپ کو بتائیں ہائی کورٹ نے چودھری پرویز الہی کو رہا کر دیا اور چودھری پرویز الہی کسی بھی مقدمے میں گرفتار نہ کرنے کا حکم بھی دے دیا گیا ہے۔ عدالت نے ریمارکس دیے کہ انکوائری کی جائے گی کہ عدالتی حکم کے باوجود کس کے کہنے پر گرفتاری ہوئی۔ سابق وزیر اعلیٰ پنجاب چودھری پرویز الہی نے رہائی پر شکریہ ادا کیا۔ سے پرویز الہی کی گرفتاری کا معاملہ لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس امجد رفیق نے پرویز الہی کی درخواست پر سماعت کی۔ نیب حکام نے عدالتی حکم پر پرویز الہی کو عدالت کے روبرو پیش کیا۔ جسٹس امجد رفیق نے ریمارکس دیے کہ جب 2 رکنی بینچ نے فیصلہ دے دیا تو جسمانی ریمانڈ میں توسیع کیوں کی، اس معاملے پر انکوائری ہوگی۔ عدالت نے پرویز الہی کو کسی بھی مقدمے میں گرفتار نہ کرنے کا حکم دیتے ہوئے فوری رہا کرنے کی ہدایت کر دی۔ پرویز الہی کے وکیل نے استدعا کی کہ پولیس کی نفری باہر موجود ہے، خدشہ ہے کہ عدالتی حکم کے باوجود پھر گرفتار کر لیا جائے گا۔ اس پر عدالت نے ریمارکس دیے کہ مناسب حکم جاری کریں گے۔ کمرہ عدالت میں صحافیوں سے گفتگو میں سابق وزیر اعلیٰ نے رہائی پر شکریہ ادا کیا اور کہا کہ ملک کو تباہی کی طرف لے جایا جا رہا ہے۔ عدالتی حکم کے بعد نیب کے پرویز الہی کو دوبارہ گرفتار نہ کرنے پر پولیس اہلکاروں اور نیب آفیسرز کے درمیان تلخ کلامی بھی ہوئی۔ کیمرہ مین محمد ایوب کے ساتھ محمد اشفاق، لاہور نیوز۔ خبر یہ ہے کہ ہائی کورٹ کے باہر سے پرویز الہی کی دوبارہ ممکنہ گرفتاری کا خدشہ جسٹس امجد رفیق نے رجسٹرار لاہور ہائی کورٹ کو بلا لیا۔ ایس پی اقبال ٹاؤن کو بھی طلب کر لیا گیا۔ آپ 1-2 افسران لیں، پرویز الہی کو گھر چھوڑ کر آئیں۔ جسٹس امجد رفیق کے ریمارکس، جو عدالت کا حکم ہوگا اس پر عمل کیا جائے گا، ایس پی اقبال ٹاؤن نے کہا۔ اہم خبر ہے جس کے حوالے سے آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں۔ لاہور ہائی کورٹ کے باہر سے پرویز الہی کی دوبارہ ممکنہ گرفتاری کا خدشہ ہے۔ جسٹس امجد رفیق نے رجسٹرار لاہور ہائی کورٹ کو بلا لیا ہے۔ ایس پی اقبال ٹاؤن کو بھی طلب کر لیا گیا۔ آپ 1-2 افسران اور لیں، پرویز الہی کو گھر چھوڑ کر آئیں۔ جسٹس امجد رفیق کی جانب سے یہ ریمارکس دیے گئے ہیں، جو عدالت کا حکم ہوگا اس پر عمل کریں گے۔ ایس پی اقبال ٹاؤن کی جانب سے یہ کہا گیا ہے۔ خبر یہ ہے کہ ہائی کورٹ کے باہر سے پرویز الہی کی دوبارہ ممکنہ گرفتاری کا خدشہ سامنے آیا ہے۔ جسٹس امجد رفیق نے رجسٹرار لاہور ہائی کورٹ کو بلا لیا۔ ایس پی اقبال ٹاؤن کو بھی طلب کر لیا گیا ہے۔ آپ 1-2 افسران اور لیں اور پرویز الہی کو گھر چھوڑ کر آئیں۔ جسٹس امجد رفیق کے ریمارکس، جو عدالت کا حکم ہوگا اس پر عمل کیا جائے گا، ایس پی اقبال ٹاؤن کی جانب سے یہ کہا گیا۔ تو ہائی کورٹ کے باہر سے پرویز الہی کی دوبارہ ممکنہ گرفتاری کا خدشہ سامنے آیا ہے۔ جسٹس امجد رفیق نے رجسٹرار لاہور ہائی کورٹ کو طلب کر لیا ہے۔ ایس پی اقبال ٹاؤن کو بھی طلب کر لیا گیا۔ آپ 1-2 افسران اور لیں اور پرویز الہی کو گھر چھوڑ کر آئیں۔ جسٹس امجد رفیق کے ریمارک سامنے آئے۔ انہوں نے کہا کہ جو عدالت کا حکم ہوگا اس پر عمل کیا جائے گا۔ اہم خبر ہے جس کے حوالے سے آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں۔ ہائی کورٹ نے چودھری پرویز الہی کو رہا کر دیا اور چودھری پرویز الہی کو کسی بھی مقدمے میں گرفتار نہ کرنے کا حکم بھی دے دیا گیا ہے۔ ہائی کورٹ کے باہر سے پرویز الہی کی دوبارہ ممکنہ گرفتاری کا خدشہ ہے۔ جسٹس امجد رفیق نے رجسٹرار لاہور ہائی کورٹ کو بلا لیا ہے۔ ایس پی اقبال ٹاؤن کو بھی طلب کر لیا گیا۔ آپ 1-2 افسران اور لیں، پرویز الہی کو گھر چھوڑ کر آئیں۔ جسٹس امجد رفیق کی جانب سے یہ ریمارکس دیے گئے ہیں۔ اور ابھی آپ کو بتائیں پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے سے مہنگائی کی نئی لہر آئے گی۔ بلڈنگ مٹیریل کی قیمتوں میں مزید اضافے کا خدشہ ہے۔ شہر میں جاری ترقیاتی کاموں پر 25 کروڑ روپے کا اضافی بوجھ پڑے گا۔ حکومتی سطح پر جاری ترقیاتی منصوبوں پر کام کرنے والے کانٹریکٹرز کے تحفظات بھی ہیں۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے سے مہنگائی کی ایک نئی لہر آئے گی۔ بلڈنگ مٹیریل کی قیمتوں میں مزید اضافے کا خدشہ سامنے آیا ہے۔ شہر میں جاری ترقیاتی کاموں پر 25 کروڑ روپے کا اضافی بوجھ بھی پڑے گا۔ تفصیلات جانیں گے نمائندہ لاہور نیوز زین العابدین سے۔ جی زین، بتائیے۔ یہ حکومت کی جانب سے ایک ماہ میں دوسری مرتبہ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں ہوشربا اضافہ کر دیا گیا ہے اور اب قیمتوں میں اضافے کی وجہ سے مہنگائی کی نئی لہر آئے گی۔ ڈیزل اور پیٹرول کے نرخ بڑھنے سے بلڈنگ مٹیریل کی قیمتوں میں بھی مزید اضافے کی توقع کی جا رہی ہے۔ اس کے علاوہ بلڈنگ مٹیریل کی کیریج اور اس کے ساتھ ساتھ جو پروجیکٹ کی موبلائزیشن ہے اس کی لاگت میں بھی اضافہ ہو گیا ہے، جس کے بعد حکومتی سطح پر جاری ترقیاتی منصوبوں پر کام کرنے والے کانٹریکٹر کی طرف سے تحفظات سے آگاہ کر دیا گیا ہے اور خاص طور پر ایل ڈی اے کے منصوبوں پر کام کرنے والے کانٹریکٹرز نے اپنے تحفظات سے متعلق اتھارٹی کو آگاہ کر دیا ہے۔ کانٹریکٹر نے شہر میں جاری منصوبوں کو مکمل کرنے کے لیے پنجاب حکومت کو بھی جو اپنی ڈیمانڈ ہے وہ جمع کروا دی ہے اور پنجاب حکومت کو ان پٹ ریٹس پر 1 ماہ بعد جو ریوائز کرنے کے احکامات ہیں وہ جو استدعا ہے وہ کی گئی ہے۔ موجودہ صورتحال میں پنجاب حکومت کی طرف سے جو ریوائز ریٹ ہوتے ہیں وہ
एक माह बाद किए जाते हैं। अब कॉन्ट्रैक्टर की जानिब से इस अमर की इस्तदा की गई है, क्योंकि हर 15 रोज बाद पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी और इजाफा हो रहा है, लिहाजा जो कॉन्ट्रैक्टर के लिए रेट दिए जाते हैं उनकी भी जो रिवीजन है वो हर 15 दिन बाद की जाए, ये इस्तदा की गई है। इसके साथ ठीक है, बहुत शुक्रिया ज़ैनुल आबिदीन, आपने तफसीलें आगाह किया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के आफ्टर शॉक सामने आना शुरू हो गए हैं। रेलवे ने किरायों में 5% इजाफा कर दिया है। तमाम मेल एक्सप्रेस पैसेंजर और इंटरसिटी ट्रेनों के किरायों में इजाफा कर दिया गया। 16 रोज में रेलवे के दूसरी बार किरायों में इजाफा किया गया। इसी पर बात करेंगे फहद अमीन से। जी फहद, तफसीलात से आगाह कीजिए। आज बिल्कुल पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के आफ्टर शॉक जो है वो सामने आना शुरू हो चुके हैं। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के बाद रेलवे ने भी जो है वो किरायों में इजाफा कर दिया है। रवा माह के पहले ही रोज जो है वो किरायों में इजाफे का बम अवाम तक फोड़ दिया गया है। रेलवे इंतजामिया ने तमाम मेल एक्सप्रेस पैसेंजर और इंटरसिटी ट्रेनों की तमाम क्लासेस पर जो है की टिकटों में 5% तक जो है वो इजाफा कर दिया है। पार्सल और लगेज रेट में भी 5% इजाफा किया गया है। इजाफे पर अमल दरामद जो है वो 2 सितंबर से किया जाएगा। रेलवे इंतजामिया ने इस हवाले से नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। जराये का कहना है कि 16 रोज में रेलवे की जानिब से दूसरी बार किरायों में जो है वो इजाफा किया गया है। 16 अगस्त को रेलवे ने मुसाफिर ट्रेनों के किरायों में 10% इजाफा किया था, ताहम अब जो है वो एक दफा फिर 5% इजाफा किया है। रेलवे के ट्रेनों की किरायों में इजाफे से आम आवाम जो है वो परेशान है। किरायों में इजाफे के बाद अवाम परेशान है। फाहद अमीन अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया फाहद। खबर शामिल करें। पाकिस्तान गुड्स ट्रांसपोर्टर्स एसोसिएशन महंगाई के खिलाफ मैदान में आ गई। कल मुल्क भर में पहिया जाम हड़ताल का फैसला कर लिया है। 2 सितंबर को तमाम बुकिंग एजेंसियां बंद रहेंगी। जनरल सेक्रेटरी नबील महमूद तारिक कहते हैं कि हड़ताल बिजली बिलों और पेट्रोलियम कीमतों में इजाफे के खिलाफ की जा रही है। तफसीलात बताएंगे ज़ैनुल आबिदीन। जी ज़ैन, आगाह कीजिए। ये हालिया महंगाई की लहर की वजह से जो तमाम स्टेक होल्डर्स हैं वो शदीद मुतासिर हो रहे हैं। तो अब पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में भी इजाफा कर दिया गया है, जिसके बाद पाकिस्तान गुड्स ट्रांसपोर्टर्स एसोसिएशन इस महंगाई की लहर के खिलाफ मैदान में आ चुकी है और गुड्स ट्रांसपोर्टर एसोसिएशन की जानिब से कल बरोज हफ्ता पहिया जाम हड़ताल का फैसला किया गया है। कल दीगर सियासी जमातों की जानिब से भी हड़ताल का ऐलान किया गया है, तो इसमें पाकिस्तान गुड्स ट्रांसपोर्टर एसोसिएशन भी शामिल हो गए हैं। इस हवाले से जनरल सेक्रेटरी ट्रांसपोर्टर एसोसिएशन नबील महमूद तारिक की जानिब से ये बताया गया है कि 2 सितंबर रोज हफ्ता तमाम बुकिंग एजेंसियां बंद रहेंगी और ये हड़ताल बिजली के बिल, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के खिलाफ होगी। गुड्स ट्रांसपोर्टर के साथ साथ कस्टम हुकाम की ज्यादतियों को भी बंद किया जाए, ये उनकी तरफ से मौक़िफ़ सामने आया है। जबकि एनएचए की जानिब से तेजा और नाजायज जुर्मानों को भी बंद करने का मुतालबा किया गया है। ठीक है, बहुत शुक्रिया ज़ैनुल आबिदीन। विफाक की तर्ज पर कम अज़ कम तनख्वाह 32,000 रुपये की जाए। सरकारी मुलाजमीन और मजदूर तंजीमों के मुतालबात के हक में एहतजाज। मुजाहिरीन की प्रेस क्लब से वज़ीर आला हाउस तक रैली। हुकूमत के खिलाफ शदीद नारेबाजी की गई। तफसीलात जानते हैं वहाँ पर मौजूद हमारे नुमाइंदे फहद अमीन से। जी फहद, बताइए। हाँ जी बिल्कुल, पंजाब के मुख्तलिफ सरकारी महकमा और प्राइवेट सेक्टर के मजदूरों की जानिब से आज जो है वो अपने मुतालबात के हक़ में लाहौर प्रेस क्लब के बाहर एहतजाजी मुजाहरा किया जा रहा है। और इसके साथ साथ लाहौर प्रेस क्लब से जो है वो वज़ीर आला सेक्रेटेरिएट तक जो है वो एहतजाजी रैली भी जो है वो निकाली जा रही है। हमारे साथ जो रहनुमा हैं इन मजदूर तंजीमों के और जो सरकारी मुलाजमीन के जो रहनुमा हैं वो हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं, इनसे जानते हैं। अच्छा सर, बताइएगा आज का ये एहतजाज क्यों किया जा रहा है? ये एहतजाज की हमने पहले भी कॉल दी थी और अभी तक गवर्नमेंट को इस बात का ये एहसास नहीं कि जो प्राइवेट लोग हैं, मजदूर हैं, इंडस्ट्री है, उसमें 25,000 मिनिमम वेजेस पहले थी, जो कि कई इदारों में वो अभी भी इम्प्लीमेंट नहीं हुई, क्योंकि हमारे यहाँ कानून की तो बालादस्ती है ही नहीं। अब 1 जुलाई से 32,000 मिनिमम वेजेस फेडरल गवर्नमेंट ने अनाउंस की है, जिसका पंजाब में आज तक कोई नामो निशान नहीं। आप मुझे बताइएगा, क्या कहेंगी, आप भी ख़वातीन भी इस एहतजाज में शामिल है, क्या सूचना?
बदकिस्मती ये है कि 300 से ज़ायद पेट्रोल की कीमत हो गई है, बिजली के बिल 65 रुपये यूनिट तक पहुंच गए हैं। इस सब जानलेवा महंगाई के बावजूद इस सूबे की निगरान गवर्नमेंट मेहनत कशों का जो बुनियादी हक है 32,000 वो अदा नहीं कर सकती। आज बिल्कुल आपने जो है वो गुफ्तगू सुनी। इनका कहना है कि जो बुनियादी हक है मज़दूरों का उस पर अमल दरामद नहीं किया जा रहा, तनख्वाहों में इजाफा नहीं किया जा रहा, महंगाई जो है वो मुसलसल बढ़ती जा रही है, मज़दूर जो है वो पंजाब का परेशान है। जी शुक्रिया फ़हद। डॉलर में रोज़ बरोज़ इजाफे का सिलसिला जारी है। ओपन मार्केट में डॉलर 3 रुपये महंगा हो गया। ओपन मार्केट में डॉलर 330 रुपये तक जा पहुंचा। इंटरबैंक में 30 पैसे इजाफे से डॉलर की कीमत 305 रुपये 83 पैसे हो गई। इसी पर बात करेंगे जाहिद आबिद से। जी जाहिद, तफसीलात से अदा कीजिए। मार्केट में कारोबारी हफ्ते के आखिरी रोज जो इसका सूरत है उसमें बैंकों से डॉलर ना मिलने की वजह से इसको तो ओपन मार्केट में दबाव देखा जा रहा है और ओपन मार्केट में डॉलर 3 रुपये तक महंगा हो चुका है। ताहम इंटरबैंक में मामूली सा इजाफा हुआ है 30 पैसे का, जिससे इंटरबैंक डॉलर रेट 305 रुपये 83 पैसे पर ट्रेड हो रहा है। लेकिन ओपन मार्केट में डॉलर कम से कम 330 रुपये तक ट्रेड हो रहा है और बाज़ जगह पर इससे भी ज्यादा पर डॉलर बेचा जा रहा है। मार्केट ज़राए के मुताबिक गुज़श्ता चंद रोज की तेजी की वजह से इस मार्केट में मुनाफा कमाने वाले डॉलर्स होल्ड किए हुए हैं और ये तवक्को कर रहे हैं कि आइंदा हफ्ते डॉलर की कदर में मजीद इजाफा होगा, जिसकी वजह से डॉलर की सप्लाई इस मार्केट में कम देखी जा रही है और इसी तनाज़र में इसकी कीमत में इजाफा हो रहा है और आज रिकॉर्ड 3 रुपये ओपन मार्केट में डॉलर महंगा हुआ है। जी शुक्रिया जाहिद। को बताएं SHO शाहदरा सग़ीर मेतला के बाद उसका कार ख़ास मुस्तफ़ा भी फरार हो गया। मुस्तफ़ा कार ख़ास सग़ीर मेतला के साथ हर थाने में तैनात रहा। पुलिस ज़राए के मुताबिक मनशियात फरोशी के मामले में कार ख़ास मुस्तफ़ा भी मुलव्वस है। SHO शाहदरा के खिलाफ ज़मीनों पर कब्जे का भी मुकदमा दर्ज है। मज़ीद तफसीलात जानेंगे नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ मुजाहिद लतीफ़ से। जी मुजाहिद बताइए। आज बिल्कुल SHO शाहदरा के फरार होने का मामला है। सग़ीर मेतला का कार खास मुस्तफ़ा भी इस मामले में फरार हो चुका है। मुस्तफ़ा कार खास सग़ीर मेतला के साथ हर थाने में तैनात रहा है और मंशियात फरोशी के मामले में कार खास मुस्तफ़ा भी मुलव्विस है। पुलिस राय ने इस बात का इंकशाफ किया है। पुलिस ने सग़ीर मेतला और कार खास की गिरफ्तारी के लिए जोहर टाउन और मुल्तान रोड पे वाक़ एक सोसाइटी में उनकी रिहाइशगाह पर छापे मारे हैं और इसके साथ साथ SHO शाहदरा सग़ीर मेतला के हवाले से इंक्वायरी में मजीद इंकशाफात भी सामने आए हैं। सग़ीर मेतला पर जमीनों पर कब्जा करने का मुकदमा थाना हरबंसपुरा में पहले ही दर्ज हो चुका था और थाना हंजरवाल में भी इख्तियारात से तजावुज़ करने का मुकदमा भी एक दर्ज है। साबिक DIG ऑपरेशन अफजाल कोसर ने सग़ीर मेतला को एक इंक्वायरी में सजा के तौर पर ASI कर दिया था। मौजूदा CCPO ने SHO शाहदरा की सजा माफ करते हुए सब इंस्पेक्टर के ओहदे पर उसे बहाल किया और तगड़ी सिफारिश के बाद DIG ऑपरेशन ने सग़ीर मेतला को लाहौर के A+ थाना शाहदरा में उसको तैनात कर दिया। SHO शाहदरा प्रॉपर्टी का कारोबार भी करता है, ये पुलिस रिपोर्ट में बात सामने आई है। सग़ीर मेतला बगैर NOC के कई मरतबा बैरून मुल्क के दौरे भी कर चुका है। SHO सग़ीर मेतला और उसके कार्यकाल। ठीक है, बहुत शुक्रिया मुजाहिद लतीफ़। बढ़ते हुए आपको बताएं, लाहौर को खूबसूरत बनाने के लिए नए नाम के साथ मुहिम शुरू करने का फैसला कर लिया गया है। सोहना लाहौर ब्यूटिफिकेशन ऑफ लाहौर के बाद अब स्मार्ट लाहौर मंसूबा मुतारिफ करवा दिया गया है। पंजाब हुकूमत की हिदायत पर स्मार्ट लाहौर के नाम से एप्लीकेशन की तैयारी शुरू कर दी गई है। कमिश्नर लाहौर और DG LDA नए मंसूबे की मॉनिटरिंग करेंगे। इसी हवाले से तफसीलात जानेंगे ज़ैनुल आबिदीन से। जी ज़ैन। ये लाहौर को खूबसूरत बनाने के लिए नए नाम के साथ मुहिम शुरू करने का फैसला किया गया है। इससे कबल सोना लाहौर ब्यूटिफिकेशन ऑफ लाहौर और दिलकश लाहौर समेत ग्रीन लाहौर के प्रोजेक्ट शुरू किए गए, लेकिन अब स्मार्ट लाहौर मंसूबा मुतारिफ करवा दिया गया है। पंजाब हुकूमत की हदायत पर स्मार्ट लाहौर के नाम से एप्लीकेशन की तैयारी शुरू कर दी गई है और लाहौर में बुनियादी सहूलियात की फराहमी के अदारे ये स्मार्ट लाहौर मंसूबे के ज़ेर इंतजाम काम करेंगे। कमिश्नर लाहौर और DG LDA नए इस मंसूबे की मॉनिटरिंग करेंगे, जबकि LDA, वासा, टीपा, पार्क्स एंड हॉर्टिकल्चर अथॉरिटी, MCL और जो दीगर इदारे हैं वो इस मंसूबे के तहत काम करेंगे, जबकि स्टेक होल्डर, सिविल सोसाइटी, जनरल पब्लिक को स्मार्ट लाहौर ऐप। ठीक है, बहुत शुक्रिया ज़ैनुल आबिदीन। और अभी आपको बराह रास्त लिए चलें, गालिब मार्केट में SP मॉडल टाउन डॉक्टर इमारा शिराजी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही हैं। पे 3 और मुल्ज़िमान जो हैं वो अरेस्ट हुए, उनसे भी जो है वो बड़ी कसीर तादाद में चर्स और कोकेन जो है वो बरामद हुई। इनसे मोबाइल फ़ोन्स इन तमाम मंशियात फरोशों से बरामद हुए और इनके मोबाइल फ़ोन्स में जो इनका तरीका बेचने का जो तरीक़ाकार था, इनके मोबाइल फ़ोन्स के अंदर इनके क्लाइंट्स या जो इनके ख़रीदार थे, जो इनके
जिनको ये बेचते हैं उनके नाम थे और फ़ोन के ऊपर जो है ये उनको सप्लाई करते हैं। वही क्लाइंट जो है इनके इजी पैसा या जायज़ कैश के अकाउंट्स में जो है वो पैसे ट्रांसफ़र करता है और ये जाके मोबाइल फ़ोन के ऊपर कॉल के ऊपर ही जाके ये उसको जो है वो मंशियात डिलीवर करते हैं। ये मंशियात फ़रोश हमारे लाहौर के मुख्तलिफ़ इलाक़ों में और यूनिवर्सिटीज़ में ये मंशियात सप्लाई का काम कर रहे थे। इनके फ़ोन से लाहौर के जो है मुख्तलिफ़ जैसे कि DHA, बैरिया टाउन और बहुत सारे इलाक़ों के जो है वो लोग जो ख़रीदार हैं उनके नामों के इंकशाफ हुए हैं और डिफरेंट जो यूनिवर्सिटीज़ और स्टूडेंट्स में भी जो है ये मंशियात फ़रोशी का काम कर रहे थे। इनकी अरेस्ट से और इनकी गिरफ़्तारी से जो है वो एक बड़ा मुनज़्ज़म नेटवर्क जो है वो ब्रेक हुआ है, जो टूटा है और इनसे जो मंशियात बरामद हुई है वो इस चीज़ का हमारा इरादा और हमारा अज़म की डिपिक्शन करती है कि लाहौर पुलिस मंशियात के जितने भी मुनज़्ज़म नेटवर्क्स हैं उनको तोड़ने के लिए और उनको नेस्तो नाबूद करने के लिए हर तरह से कोशा हैं और पूरी तरह से जो है मंशियात के ख़िलाफ़ वो एक्टिव है और तमाम मंशियात फ़रोश इंशाल्लाह जो है वो जेल की सलाखों के पीछे होंगे। थैंक यू। जी 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 जब ये मंशियात फ़रोशी की बात आती है तो आपकी बिल्कुल जो बात है वो आप कहने में हक बजाने में उसमें काना का नाम हमेशा जो है लिया जाता है। जब ये मुहिम स्टार्ट हुई काना में हमने एक बड़ा वसी पैमाने पर एक जो है वो ऑपरेशन किया जिसमें सिर्फ इस महीने के अंदर जो है वो 19 के करीब जो मंशियात फ़रोश हैं उनको गिरफ़्तार करके उनके ऊपर 9C के मुकदमात जो है वो रजिस्टर हो चुके हैं। इन मंशियात फ़रोशों के अरेस्ट के अलावा एक सर्च ऑपरेशन किया गया जिसमें तमाम जो है वो घरों की और तमाम जो हैं वो मंशियात फ़रोशों के ठिकानों की जो है वो सर्च की गई और उनको अरेस्ट करके उनके ऊपर FIRs रजिस्टर की गई। इसके अलावा भी अपने जितने भी हमारे रिसोर्सेज हैं हमने मंशियात फ़रोशों की जो इंफॉर्मेशन है या वो उनकी तमाम उनके नेटवर्क्स की इंफॉर्मेशन है वो इकट्ठी करके उनके ऊपर भरपूर तरीके से उन पर काम कर रहे हैं। जब से ये क्रैकडाउन स्टार्ट हुआ है किया जा रहा है कि बहुत बड़े लेवल पे क्रैकडाउन किया जा रहा है। जी इसी क्रैकडाउन के दौरान कुछ पुलिस कांस्टेबल्स के पुलिस ऑफिसर के लोग वो इन्वॉल्व होने के एविडेंसेस भी सामने आए हैं, रेड भी हुए हैं, FIRs भी हुई। तो पुलिस इंटेलिजेंस की मदद से कोई ऐसी प्रोफाइलिंग स्टार्ट की गई है कि जो पुलिस के लोग इसमें इन्वॉल्व है उनको अरेस्ट किया जा सके या रोका जा सके? अच्छा ये देखें हर जगह जहाँ अच्छे लोग होते हैं वहाँ पे कुछ बुरे लोग भी होते हैं, तो ये आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि इसमें कुछ ऐसे जो हैं वो हमारे कुछ डिसमिस्ड शुदा जो महकमे से बर्खास्त किए हुए हैं वो लोग भी इसमें जो है वो डिटेक्ट हुए हैं और कुछ लोग जो ऑलरेडी यहाँ। आपको बताएं रेलवे के बाद पब्लिक ट्रांसपोर्टर्स ने भी किरायों में इजाफा कर दिया है। ट्रांसपोर्टर्स की जानिब से किरायों में 10 से 15% तक इजाफा किया गया है। लाहौर से कराची का किराया 5,800 से बढ़कर 6,100 रुपये मुकर्रर कर दिया गया, जबकि मरी का किराया 2,000 से 200 से बढ़कर 2,400 रुपये हो गया है। मज़ीद तफसीलात जानेंगे ज़ैनुल आबिदीन से। जी आगाह कीजिए। रेलवे के बाद पब्लिक ट्रांसपोर्टर्स ने भी किरायों में इजाफा कर दिया। ट्रांसपोर्टर की जानिब से किरायों में 10 से 15% तक इजाफा किया गया। लाहौर से कराची का किराया 5,800 से बढ़कर 6,100 रुपये मुकर्रर कर दिया गया। मरी का किराया 2,200 से बढ़कर 2,400 रुपये कर दिया गया। रेलवे के बाद पब्लिक ट्रांसपोर्टर्स ने भी किरायों में इजाफा कर दिया है। ट्रांसपोर्टर्स की जानिब से किरायों में 10 से 15% तक इजाफा किया गया है। तफसीलात जानते हैं ज़ैनुल आबिदीन से। जी ज़ैन बताइए। ये वफाकी हुकूमत की जानिब से एक में दूसरी मरतबा जब पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा किया गया तो ट्रांसपोर्टर्स ने भी अज खुद किरायों में इजाफा कर दिया है। अभी तक महकमा ट्रांसपोर्ट पंजाब और रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी की तरफ से कोई भी सरकारी सतह पर नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया, लेकिन इसके बावजूद लाहौर से जो दीगर शहरों में जाने वाली पब्लिक ट्रांसपोर्ट है उसके किरायों में 10 से 15% तक इजाफा कर दिया गया है। और जो लाहौर न्यूज़ को तफसीलात मौसूल हुई हैं उसके मुताबिक लाहौर से दूसरे शहरों के किरायों में 200 से 300 रुपए तक इजाफा किया गया है, जिसमें लाहौर से कराची जो जाने का किराया 5800 रुपए था, अब वो बढ़कर 6100 रुपए तक पहुंच चुका है। इसी तरह
रावलपिंडी का किराया 2000 रुपए और पेशावर का किराया 2200 रुपए से बढ़कर 2350 रुपए हो गया है। कोयटा का किराया 4200 रुपए से बढ़कर 4400 रुपए, जबकि लाहौर से मरी का किराया 2200 से बढ़कर 2400 रुपए कर दिया गया है। पेशावर का किराया 2200 से बढ़कर 2500 रुपए। जी, ज़ैनुल आबिदीन तफसीलात से आगाह कर रहे थे, शुक्रिया ज़ैन। अवाम महंगाई के गर्दाब में फंस कर रह गए, सब्जियां और फल मनमाने रेट पर फरोख्त किए जाने लगे। प्याज 110, टमाटर 100, लहसुन 550 और अदरक 1100 रुपए किलो में फरोख्त। मुर्गी का गोश्त 7 रुपए सस्ता हो गया, कीमत 559 रुपए मुकर्रर कर दी गई। तफसीलात जानते हैं अब्दुल कादर से। जी अब्दुल कादर, बताइए। आज सब्जियों, फलों और पोल्ट्री मसनूआत की कीमतों के हवाले से बात की जाए तो 4 सब्जियों की कीमतों में आज इजाफा किया गया। सरकारी नरकनामे में जिन सब्जियों की कीमतों में इजाफा हुआ उसमें पालक 5 रुपए महंगी करके 45 रुपए, लेकिन मार्केट में 80 रुपए फी किलो तक फरोख्त की जा रही। बंद गोभी 9 रुपए इजाफे के बाद 95 रुपए मुकर्रर की गई, लेकिन मार्केट में बंद गोभी 130 रुपए तक फरोख्त की जा रही। मटर जो है वो 10 रुपए महंगे करके 300 रुपए सरकारी रेट इसमें आज मुकर्रर किए गए, लेकिन मार्केट में 550 से 600 रुपए फी किलो तक मटर फरोख्त किए जा रहे हैं। इसी तरह सेब जो है वो 300 रुपए फी किलो तक, केला दर्जा अव्वल 200 रुपए दर्जन तक फरोख्त किया जा रहा है। आम जो है वो 300 रुपए फी किलो तक फरोख्त किए जा रहे हैं। अंगूर 450 रुपए फी किलो तक फरोख्त किए जा रहे हैं। ब्रायलर के हवाले से बात की जाए तो ब्रायलर की खपत जो है वो कम होने की वजह से आज कीमतों में कमी हुई है, लेकिन ये कमी मामूली है क्योंकि 7 रुपए कमी के बाद ब्रायलर गोश्त की कीमत जो है 560 रुपए फी किलो मुकर्रर की गई है, जो कि अब भी एक आम खरीदार या एक आम सारिफ की कुव्वत खरीद से बाहर है। हमारे साथ एक सारिफ मौजूद है जो कि सिंहपुरा सब्जी मंडी में मौजूद है, इन्हीं से बात करते थे। आप बताइएगा कि कीमतें जो हैं वो दिन ब दिन बढ़ती जा रही हैं, कोई चीज़ सस्ती है या महंगाई मुसलसल बढ़ रही है? महंगाई मुसलसल बढ़ती जा रही है, ठीक है। ये जो से आलू वगैरह हैं वो तकरीबन 20 रुपये 25 रुपये किलो बिकते रहे हैं, ठीक है। अब ये 100 रुपये से ऊपर ही रेट इनका दिन ब दिन ऐसे लग रहा है जैसे ये 150-200 तक चल जाएगा रेट इनका। डेली का 800-1000 रुपये या 1200 से ऐसे ज़्यादा कमा लेंगे, ठीक है। और खर्चे वगैरह उससे डबल हो रहे हैं। वो फिर घर ना फल लेके जा रहे हैं ना गोश्त खा रहे हैं, दालें वगैरह या बिजली के बिल पूरे कर लें तो बड़ी बात है, वो भी करते उठा के ऐसे लगे हुए हैं करने। आज बिल्कुल आपने जो है सारिफ की गुफ्तगू सुनी, उनका कहना है कि सब्जियां भी अब सस्ती नहीं रही। जो आलू 20-25-30 रुपए फी किलो तक फरोख्त होता था, मार्केट में 100 रुपए फी किलो तक फरोख्त हो रहा है। इसी तरह दिगर सब्जियां जो है उनकी कीमतों में भी दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है और महंगाई की शरह जो है कंट्रोल होने की बजाय मजीद बढ़ रही है। जी शुक्रिया अब्दुल कादिर। लाहौर समेत सूबे भर में डेंगू केसेस और लार्वा में इजाफा हो रहा है। डायरेक्टर CDC डॉक्टर यदुल्ला कहते हैं कि आइंदा 3 माह में डेंगू केसेस बढ़ सकते हैं। शहरियों को डेंगू SOPs पर अमल दरामद करने की ज़रूरत है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं मोहम्मद बिलाल से। जी बिलाल, आगाह कीजिए। जी बिल्कुल, लाहौर समेत पंजाब भर में डेंगू वायरस के जो कन्फर्म मरीज़ हैं इनमें बदस्तूर और तेज़ी से इजाफा देखने में आ रहा है, जबकि इसके साथ साथ जो डेंगू लार्वा है इसमें भी ख़तरनाक हद तक इजाफा शुरू हो चुका है। इस वक्त डायरेक्टर CDC डॉक्टर यदुल्ला हमारे साथ मौजूद हैं, तो इनसे हम पूछते हैं कि आइंदा जो आने वाले 3 महीने हैं डेंगू कितनी तेज़ी से फैल सकता है, मरीज़ों को और आम जो शहरी हैं इनको किस किस्म की जो एहतियाती तदाबीर है वो अपनाने की ज़रूरत है। जी, हमारे मुल्क में हर साल डेंगू का जो ख़तरा होता है और ख़ास तौर पे उसमें जो 3 महीने हैं अगस्त, सितंबर और अक्टूबर, इस दफ़ा चूँकि प्री मॉनसून आपने देखा है कि इंटरनेशनली मौसमियाती तब्दीलियाँ हो रही हैं। अर्ली मॉनसून इस वक्त सिर्फ लाहौर में 1100 मिलीमीटर से ज़्यादा बारिशें रिकॉर्ड हो चुकी हैं। उसकी वजह से इन 3 महीने में अब नंबर ऑफ़ केसेस बढ़ना शुरू हुए हैं, जिस पर चीफ मिनिस्टर, चीफ सेक्रेटरी हेल्थ अली जान खान साहब, हमारे मिनिस्टर्स दोनों रेगुलर मीटिंग्स कर रहे हैं और इस पर हमारी टीमें फील्ड में मुतहरिक हैं। लार्वे के ऊपर, हॉटस्पॉट्स के ऊपर डेली काम हो रहा है, डेली इसकी रिपोर्ट। इवन हॉस्पिटल्स को हमने फुली तरह फंक्शनल कर दिया है, नई DIAG को नोटिफाई कर दिया गया है, उसकी रेगुलर मीटिंग्स हो रही हैं और अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि इस साल अभी तक कोई ऐसी हलाकत नहीं आई। इसमें ख़ास तौर पे बच्चों को, जो ओल्ड एज के लोग हैं, जो कोमॉर्बिडिटी का शिकार हैं, उनके लिए ख़ास एहतियात है। फुल आस्तीन के कपड़े पहनें, शाम को आप दरवाजे बंद रखें, एंटी मॉस्किटो रिपेलेंट्स का इस्तेमाल करें। स्कूलों की भी हमने हदायत जारी कर दी हैं, तो तमाम शहरी जो हैं वो कम अज़ कम अपने घर को ज़रूर साफ़ रखें। जी बिल्कुल, जिस तरह कि आपने सुना कि जो एहतियाती तदाबीर हैं ये बताई जा रही है, कहा यह जा रहा है कि आइंदा जो आने वाले 3 महीने हैं ये डेंगू वायरस के हवाले से बड़े अहम हैं, तो शहरियों को चाहिए कि जो एहतियाती तदाबीर हैं, जो SOPs बनाए गए हैं, इस पर अमल दरामद करें। ठीक है, बहुत शुक्रिया मोहम्मद बिलाल।
पेट्रोलियम मसनूआत की बढ़ती कीमतें तरक्याती स्कीमों पर भारी पड़ने लगी हैं। ज़ेर इल्तवा स्कीमों के फंड्स में 2 गुना इजाफा कर दिया गया। सियासी जमातों के मकामी नुमाइंदे तरक्याती फंड्स जारी ना होने पर नाराज़ हैं। शहर में तरक्याती कामों के लिए सरकारी खजाने से एक धेला भी जारी ना हो सका। तफसीलात इमरान अकबर की इस रिपोर्ट में। पंजाब में मकामी हुकूमतें सियासी कशमकश का शिकार। पेट्रोलियम मसनूआत की बढ़ती कीमतें भी तरक्याती स्कीमों पर असरअंदाज। महकमा बल्दियात के तरक्याती मंसूबों के लिए मंजूर शुदा 183 अरब रुपए के बजट को ब्रेक लग गई। सड़कों की तामीर, सीवरेज सिस्टम, कब्रस्तानों और पार्क की बहाली की स्कीमें ज़ेर इल्तवा। वॉल सिटी लाहौर की स्कीमें भी तकमील की मुंतजिर। महकमा बल्दियात के ज़ेर इंतजाम 183 अरब रुपए का बजट जूं का तूं पड़ा है। मजमूई तौर पर 628 तरक्याती स्कीमों के लिए ये बजट मुख्तस किया गया है। जनरल बस स्टैंड की तामीर, सलाटर हाउस के लिए 50-50 करोड़ रुपए का बजट रखा गया। पंजाब सिटीज इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम के लिए 9 अरब रुपए इस्तेमाल न हो सके। पब्लिक पार्क के लिए 27 करोड़, मॉडल कैटल मार्केट्स के लिए 15 करोड़ रुपए जारी न हुए। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट के लिए 20 करोड़ रुपए का इजरा भी रुक गया। शाही कला की बहाली के लिए 20 करोड़ रुपए मुख्तस, ताहम काम शुरू न हो सका। दिलकश लाहौर के लिए 20 करोड़ रुपए भी फाइलों में बंद हैं। सेक्रेटरी बल्दियात पंजाब डॉक्टर इरशाद का कहना है कि लाहौर समेत पंजाब की 229 मकामी हुकूमतों में जारी तरक्याती स्कीमों के लिए फंड जारी किए गए हैं। कैमरा टीम के हमरा इमरान अकबर, लाहौर न्यूज़।